Hello dear students. Today we'll discuss the power related things in an AC circuit. So first is the power in an AC circuit. What do we mean by AC circuit? AC circuit means LCR must be present in the circuit. And if LCR is present, in this case what you have to do is we are placing L, then we are placing C, and then we are placing R. We know that current and voltage have some phase difference. So suppose the current which is flowing in the circuit is EMF in the circuit is E is equal to E naught sine omega t. So E will be equal to E naught sine omega t, and I will be equal to I naught sine omega t minus phi. There is some phase difference between I and E that we had already seen in the phasor diagram, that this is the current, this is VR, this is VL, and this is VC. And if VC is greater than VL is greater than VC, in that case the net resultant will be in this direction, that is VL minus VC, and in this direction you will find the resistance. So the net resultant of EMF will be in this direction. So there is a phase difference between I and E. So we had considered that phase difference as phi. So we know the value of E and we know the value of I. So what is the formula for power? The formula for power is P is equal to E into I. Here E and I are the instantaneous value. So the power which we get over here will also be instantaneous. So this value will be E naught sine omega t into I naught sine omega t minus phi. So E naught I naught sine omega t and sine omega t minus phi, this will be P instantaneous. This is our instantaneous power. And if this is our instantaneous power, we need to find the average power, the total power consumed. So for that, what we have to do is we have to find the work done. How we can find the work done? We know that P instantaneous का एक और formula हुआ करता था, and that formula was dw by dt. और एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता था वो होता था टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, राइट? So what we are going to do is, with the help of instantaneous power, we'll find the net work done, and then we'll place that net work done in place of W, and we'll find average power. So here what we can do is we can write this expression as dW is equal to E naught I naught sine omega t sine omega t minus phi into dt. If I'll integrate it both the side, what we have to do is we have to integrate both the side. And if I'll integrate it, it is not easy to solve this expression because it is sine omega t and sine omega t minus phi. So for that we are having one formula, that is 2 sine A sine B. The formula is cos A minus B minus cos A plus B, right? So we are having dw as integration of E naught I naught sine omega t and sine omega t minus phi into dt. So if I'll multiply it by 2 and divide it by 2, I'll get W is equal to, this is dw. Uh, so after integrating dw, I'll get W over here. So it will be 1 by 2, and E naught I naught will be a common quantity, and this will be 2 sine omega t sine omega t minus phi into dt. Apply the formula.
this formula over here. So it will be half E naught I naught integration of cos omega t minus omega t plus phi minus of cos omega t plus omega t minus phi, and it will be multiplied by dt. So W will be equal to E naught I naught by 2. It will be integration of cos phi dt minus integration of cos 2 omega t minus phi into dt. So what should be the limit? We are finding it for a complete cycle. So the limit will be from 0 to t. If the limit is over a complete cycle, so here this is a complete cycle, right? In that case, the value of integration of this will become 0. So W will be E naught I naught by 2, and the integration of cos will be minus of, sorry, plus of sine phi. It will be plus of sine phi into t. Sorry. It will be cos phi is constant. Cos phi is a constant quantity. And if cos phi is a constant quantity, so it will come out as it is cos phi, and the integration of dt will be t. So this will be the work done, net work done over a complete cycle. Once we determine the overall net work done over a complete cycle, what we can find? We can find the average power, and this average power will be equal to W by T, and it will be E naught I naught by 2 cos phi into T divided by T, and T will get cancelled out. So P will be equal to E naught I naught by 2 into cos phi. So P will be equal to E naught by root 2 I naught by root 2 cos phi. So E naught by root 2 is ERMS, and I naught by root 2 is IRMS cos phi. So this will be the average power consumed in AC circuit, cos phi, right? Here the cos phi is called the power factor, which we'll define it later on, how to define power factor. Now if I'll see that if cos phi, the value of cos phi becomes pi by 2, in which case we find phi as pi by 2. फेज डिफरेंस कहाँ कहाँ पर हमारा pi by 2 होता था? तो in case of inductor phi was equal to pi by 2. और किस केस में होता था? कैपेसिटर के केस में भी ऐसी कहानी होती थी. In case of capacitor also it is pi by 2, right? तो यहाँ पर आपको जो एवरेज पावर मिलेगी, वो एवरेज पावर कितनी मिलेगी? 0. तो अगर मेरे एसी सर्किट में ओनली इंडक्टर होगा या फिर ओनली कैपेसिटर होगा, इन दैट केस द पावर, एवरेज पावर विल बी 0. That means the whole power is consumed across resistor only. So we can write the whole power is consumed across resistor only. और रजिस्टर के अक्रॉस जब हमारी पावर कंज्यूम होगी, तो रजिस्टर के केस में हमारा फाई कितना हुआ करता था बेटा? फाई हमारा 0 हुआ करता था. तो अगर ये फाई हमारा 0 होता था, तो इस केस में पी एवरेज इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? ई आर एम एस आई आर एम एस, एंड इट इज कॉस 0 डिग्री. So P average will be equal to ERMS into IRMS. This is the average power consumed in case of a resistor, right? तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर जो भी हमें फेज डिफरेंस मिलेगा, वो फेज डिफरेंस अगर हम चेक करें, सिर्फ इंडक्टर के केस में अगर हम चेक करेंगे तो पाई बाई 2 का है, कैपेसिटर के केस में चेक करेंगे तो भी हमें पाई बाई 2 का मिल रहा है. अगर हम रजिस्टर की बात करेंगे तो उस केस में हमें थीटा फाई जो मिल रहा है वो 0 डिग्री मिल रहा है.
तो पी एवरेज जो आएगा वो ई आर एम एस, आई आर एम एस, ये किस केस में आ जाएगा? रजिस्टर के केस में आ जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस नो पावर इज कंज्यूम्ड। सो वी कैन राइट that in case of pure inductor and pure capacitor या कैपेसिटिव सर्किट पी एवरेज इज ज़ीरो। पी एवरेज की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? ज़ीरो मिलेगी। यही अगर हम रजिस्टर के केस की बात करेंगे तो रजिस्टर के केस में हमें पी एवरेज कितना मिलेगा? पी एवरेज विल बी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस 0 डिग्री, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ई आर एम एस आई आर एम एस। यही हमें पी एवरेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो यहीं पर कुछ टर्मोलॉजीज हैं जो हमें डिफाइन करनी है। आप चाहते तो इसको सेपरेटली भी पावर आप डिटरमाइन कर सकते हो कि पी एवरेज जीरो कैसे आएगा। तो यहाँ पर जो हमने एक्सप्रेशन प्लेस किए थे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, आप सेम काम इनके लिए कैसे कर सकते हैं? इंडक्टर के केस में जो हमारी इक्वेशन निकल कर आती थी, इंडक्टर के केस में ई इज इक्वल टू आता था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई जो हमारा निकल कर आता था दैट वाज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप क्या कर सकते हैं? आप एवरेज पावर फाइंड कर सकते हैं। यही अगर कैपेसिटर का केस होगा तो कैपेसिटर के केस में E इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस आप बिल्कुल सेम वही काम कीजिएगा जो काम आप यहाँ पर करते हुए आ रहे थे। पहले आप इंस्टेंटेनियस पावर डिटरमाइन कीजिएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर जब आप डिटरमाइन करेंगे तो आपको वर्क डन जो मिलेगा वो वर्क डन जीरो मिलेगा इन दोनों केसेस में। जब ये वर्क डन आपको जीरो मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज पावर कंज्यूम्ड in both inductor only case and capacitor only case will be zero. So here two terms arises, that what is power factor and what is wattless current. So here we are having power factor. It is basically the ratio of true power to the apparent power. So what is true power? True power is जो हमें मिल रही थी, and this power was ERMS आई आर एम एस कॉस फाइव, यही थी हमारी ट्रू पावर। और एपरेंट पावर क्या होगी हमारे पास? पी एपरेंट जो होगी, एपरेंट पावर जो हमें रजिस्टर के अक्रॉस देखने को मिल रही है कि भैया इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस तो हमें कोई पावर डेसिपेशन नहीं मिली थी, लेकिन हमारी रजिस्टर के अक्रॉस जो हमें पावर देखने को मिली थी वो ई आर एम एस आई आर एम एस देखने को मिली थी। सो दिस इज ट्रू पावर, एक्चुअल पावर। तो इन्हीं दोनों को जब मैं डिवाइड कर दूंगा, दैट इज पी ट्रू अपॉन पी एपरेंट, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इस केस में मुझे क्या चीज़ देखने को मिलेगी? इस केस में मुझे cos फाइव देखने को मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर को हम डिनोट किससे करेंगे? पावर फैक्टर को हम डिनोट करेंगे बेटा cos फाइव से। तो यहाँ पर ट्रू पावर का मतलब जो भी आपको पावर दिखाई दे रही होगी किस केस में, आपको जो पावर आपके सर्किट में दिखाई दे रही होगी, और वो सर्किट में जो आपको दिखाई दे रही है तो इसका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आर बाई जेड हो जाएगा। यानी कि कॉस फाइव का आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया? कॉस फाइव का फॉर्मूला आ गया आपके पास आर बाई जेड। और इस कॉस फाइव की जो वैल्यू लाई करती है वो 1 से -1 के बीच में लाई करेगी। यानी कि पावर फैक्टर की कभी भी वैल्यू आपकी 1 से बड़ी नहीं होगी, यानी कि पावर फैक्टर हमेशा आपको 1 से छोटा मिलेगा। वॉटलेस करंट क्या हो जाएगा? वॉटलेस करंट वो करंट होगा जहां पर किसी भी तरीके की सर्किट में पावर कंज्यूम नहीं होगी। वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इंडक्टर और इंडक्टर ओनली एंड कैपेसिटर ओनली के केस में you will get
ज़ीरो पावर। कैसी पावर मिलती है हमें? ज़ीरो पावर देखने को मिलती है। तो इसी यहाँ पर जो करंट आपका फ्लो हो रहा होगा, दैट करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों ही केसेस में, इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में, आपको पावर कंज्यूम्ड कितनी मिलेगी? ज़ीरो देखने को मिलेगी। सो दीज वर दी टू डेफिनेशंस जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज पावर फैक्टर क्या होता है और वॉटलेस करंट क्या होता है। तो इंडक्टर में जब पावर कंज्यूम नहीं हुई, कैपेसिटर में जब पावर कंज्यूम नहीं हुई, तो इंडक्टर और कैपेसिटर करते क्या हैं? इंडक्टर और कैपेसिटर आपकी एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। कैपेसिटर में तो आपको एनर्जी पता है, कितनी एनर्जी स्टोर होती थी? हाफ सी वी स्क्वायर होती थी, विच यू कैन सी इन द वीडियोस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो हमने कैपेसिटर की देखी थी, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटर के केस में कितनी पावर स्टोर होती है, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। और इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोल दिया करते थे। कौन सी एनर्जी बोलते थे हम इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इंडक्टर के केस में भी एनर्जी स्टोर होती है, तो वही हम एनर्जी स्टोर निकालने की कोशिश करेंगे इन केस ऑफ इंडक्टर। और अगर हम यहाँ पर इंडक्टर की बात करें, तो इंडक्टर के केस में एनर्जी कितनी स्टोर होगी? तो इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर निकालने के लिए सिंपल सी बात, हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर देखना होगा कि भैया हमारे सर्किट में एक लगा हुआ होता है इंडक्टर, और इसी इंडक्टर को अगर हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये जो हमारा इंडक्टर है, इस इंडक्टर की वैल्यू है आपके पास L। तो यहाँ पर आपको एक ईएमएफ मिला करता है, एंड दैट ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, है कि नहीं? ये नेगेटिव साइन तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है, इट ओनली रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जब आपको ई मिल गया, तो पावर निकालने का जो भी आपका पावर होगा, या फिर आप यहाँ पर वर्क डन निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर वर्क डन निकालने की कोशिश करूँ, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू डी टी। यही होता है हमारा वर्क डन। इसी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ई आई इंटू डी टी। तो यहाँ पर E की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एल डी आई बाई डी टी। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, इसको आप डी टी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो डी टी से डी टी क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक आई मिल रहा होगा। यानी कि यहाँ पर एल तो कांस्टेंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका? आई डी आई। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर बाई टू, ऐसे ही देखने को मिलेगा। और यही जो फॉर्मूला आया आपका, हाफ एल आई स्क्वायर, दिस इज called this is the formula for energy stored in case of inductor, right? तो ये जो फॉर्मूला आया है, यहाँ पर ये जो एनर्जी स्टोर होती है बेटा, इस एनर्जी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। जैसे वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, यहाँ पर यही चीज़ क्या है? आपकी मैग्नेटिक एनर्जी है। अब यहीं पर एक चीज़ और देखी थी हमने, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी हम लोगों ने, याद है आप लोगों को? कैपेसिटर के केस में हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो एनर्जी हमने डेंसिटी देखी थी, वो क्या देखी थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऐसे ही देखा था हम लोगों ने फॉर्मूला। अगर मैं यहीं पर एनर्जी डेंसिटी निकालने की कोशिश करूं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या काम किया, एक सोलेनॉइड ले ली, और इस सोलेनॉइड के बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही होती है। क्या मिल रही होती है? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और ये जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर इसकी लेंथ हो गई L, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए यहाँ पर N, एरिया हो गया इसका A, यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो B की जो वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट एन आई हो जाएगी, जब आप I अमाउंट का करंट फ्लो कराएंगे यहाँ से। सो इट विल बी म्यू नॉट एन आई बाई एल, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। तो एनर्जी डेंसिटी, किसी भी डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी कितनी है यहाँ पर? इंडक्टर के केस में हाफ एल आई स्क्वायर इज दी एनर्जी, और
यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। तो दिस इज एरिया इज ए एंड लेंथ इज एल, राइट। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं एल का एक्सप्रेशन प्लेस कर दूँ, किसका एक्सप्रेशन, एल का एक्सप्रेशन प्लेस कर दूँ या फिर आई का एक्सप्रेशन प्लेस करूँ, तो आई इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, बी एल अपॉन म्यू नॉट एन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। और आई की जगह आपको क्या एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ऐसे ही देखने को मिलेगा, इंटू 1 अपॉन ए इंटू एल। तो एल से एल कैंसिल हो गया बेटा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, ये देखो म्यू नॉट से एक म्यू नॉट भी कैंसिल हो गया। तो एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी, दैट विल बी हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। सो आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।